Hi everyone, guys. I'm Safarhan, and let's start paper 1, multiple choice question of Feb-March 2018, variance 12. Okay, let's start the paper. What are the shapes of the molecules of water and boron trifluoride? First of all, water. Oops. Sorry. Water has a formula H2O. Oxygen belongs to group 16 of the periodic table, which is why it has 6 valence electrons, 2, 4, and this one is 6. It has 2 lone pair and 2 single bond, which means hybridization is going to be sp3, and it has non-linear geometry or angular shape geometry or band shape or crooked shape structure. All right. Whereas boron trifluoride has a formula of BF3. It has trigonal planar geometry with an angle of 120 degree because it has 3 valence electron, which means it has 3 single bond and a zero lone pair, which means its hybridization is going to be sp2. Okay, so it's basically trigonal planar and it's basically non-linear. So non-linear is here, non-linear is here, trigonal planar is here, trigonal planar is here, and obviously D is going to be the correct option. Okay. Next, question number 2. The electronic configuration of the two outermost shell of an atom, 3s2, 3p6, 4s2, 4, 3d5 and 4s2. Okay. What is this atom? तो एक बात तो तय हो गई कि ये atom है. इसका मतलब it is neutral. It won't have any charge. Neutral element and has no charge. And the most important thing that it has 3d orbital, all right, which means this element is going to be the transition element. So B is going to be incorrect now. C is going to be incorrect now because it is not transition element. So competition exists between A and D. Let's talk about manganese first. Manganese का atomic number होता है 25 और हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाई है, तो हम 18 इलेक्ट्रॉन्स की जगह आर्गॉन लिखेंगे, यानी हमने 3p6 तक लिख लिया. 3p6 के बाद आएगा 3d and 4s, 4s2, 3d5. तो आप नोट करें ये कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन से मैच कर रही है, which is why A is going to be the right answer. Okay. Next, drinking water may contain dissolved calcium hydrogen carbonate. ये formula हो गया. How many electrons? Okay, examiner is asking about electrons present in hydrogen carbonate anion. So guys, hydrogen carbonate anion has a formula of HCO3 minus. Hydrogen का atomic number is 1, so it has 1 electron. Carbon has an atomic number of 6, so it has 6 electron. Oxygen has an atomic number of 8, so it has 8 electron. We have 3 oxygen atoms, so into 3 minus charge means 1 electron is absorbed during the reaction to +1. So total is going to be, I believe, 32 electrons, and therefore right answer is going to be C. Next, which molecule contain nitrogen atom with sp hybridized orbital? I've told you in the class that whenever you have single bonded carbon atom, the hybridization is going to be sp3. Whenever you have double bonded carbon atom, the hybridization is going to be sp2. And whenever you have triple bond between the carbon atom, hybridization is going to be sp. Now, examiner is looking for the sp hybridized orbital, which means we need to see the triple bond.
Triple bond is not present in A because all of them are single bonded carbon atom. नाइट्रोजन के अराउंड भी सिंगल बॉन्ड है. ऑप्शन बी इज आल्सो इनकरेक्ट बिकॉज नाइट्रोजन के अराउंड सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं. ऑप्शन डी इज रॉन्ग बिकॉज अमोनिया में 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं. राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली HCN बिकॉज HCN में कार्बन हैज ट्रिपल बॉन्ड. Okay, so this carbon is going to be sp hybridized orbital. Okay, and therefore C is going to be the right answer. Remember again, ये सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, इसमें कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है. सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, नो ट्रिपल बॉन्ड. ओनली सिंगल बॉन्ड, नो ट्रिपल बॉन्ड, and therefore this answer is going to be correct. Question number 5. Which mass of solid residue is obtained from the thermal decomposition of 4.10 gram of anhydrous calcium nitrate? Okay, so I need to find out the mass of solid residue, and this solid residue is going to be calcium oxide. Nitrogen dioxide तो गैस होती है, ऑक्सीजन तो गैस होती है, वो तो solid residue नहीं होता. तो इसका मतलब I need to find out the mass of calcium oxide by using the mass of anhydrous calcium nitrate. Okay, so what we can do is, first of all we need to make the balanced chemical equation. So calcium nitrate जब decompose होगा, it will turn to calcium oxide, nitrogen dioxide, and oxygen gas. Now we know the mass of calcium nitrate and we know the MR, which is 164.1. So अगर मैं इन दोनों को divide करूंगा तो I'll get the moles of calcium nitrate. तो ये हो जाएगा 4.10 divided by 164.1. तो ये आपके पास हो जाएगा 4.10 divided by 164.1 is going to be 0.0249 moles. According to the equation, moles of calcium nitrate and calcium oxide is same. तो अगर आपने इतने moles calcium nitrate के determine किए तो exactly same moles calcium oxide के भी होंगे. तो moles of calcium oxide is also same, that is 0.0249 because of same molar ratio. Okay, now we need to find out the mass of calcium oxide because calcium oxide was the residue. So mass of calcium oxide is going to be 0.0249 multiply the mass of calcium, MR of calcium oxide is going to be 56.1. So guys, ये MR भी आपको खुद से calculate करना है by using periodic table, ये MR भी आपको खुद से calculate करना होगा by using periodic table. All right, और practice की वजह से क्योंकि मुझे याद हो गए इसलिए मैंने directly लिख दिया है. तो multiply by 56.1 is going to be 1.40 gram. 1.40 gram. So let's see कि 1.40 gram कहाँ पर है हमारे पास. C में है, तो C is going to be the right option. Okay. Okay, next question. Question number 6. Sodium hydroxide neutralizes acid. That's called neutralization reaction. Okay. In a 11,000 dm cube sample of an aqueous solution, the concentration of acid is this mole per dm cube. Which mass of solid sodium hydroxide neutralizes the acid? Okay. Okay. First of all, what we can do is, okay, we have 1 dm cube में इतने moles. So if we have 11,000 dm cube, how many moles in that? So हम कह सकते हैं कि 1 mole equals to 1.26 into 10 to the power minus 3 moles of H plus ions. So अगर हमारे पास 11,000 moles हैं, so बताइए moles, sorry, अगर हमारे पास 11,000 dm cube है, ये 1 dm cube है और ये 11,000 dm cube है, तो अगर हमारे पास 11,000 dm cube है
तो क्या होगा 11,000 multiplied by 1.26 exponent minus 3 is going to be 13.86 moles. 13.86 moles of hydrogen ion. This is the first step. In the second step, you guys know कि hydroxide ions और hydrogen ions के दरमियान रेशो 1:1 का है. अगर आपने 13.86 मोल्स कैलकुलेट किए थे तो इसके भी मोल्स कितने हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे. Moles of hydroxide ion is same, that is 13.86. Examiner wanted to determine the mass of sodium hydroxide. Okay, so mass of sodium hydroxide and we have moles of sodium hydroxide. So इसका मतलब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं मास से तो मेरे पास आंसर आ जाएगा. ओके, तो ये हो जाएगा मास ऑफ sodium hydroxide is 13.86 into MR of NaOH आपने खुद से निकालना है which is 40. तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 40 से तो it's going to be 554.4 gram. So 554.4 gram is going to be D. Okay, I hope it makes sense to you. So I'm running out of space again, but it's fine. I can manage. Question number 7. The gas loss can be summarized in the ideal gas equation. 0.960 gram of oxygen gas is contained in a vessel of volume 7 times 10 to the power minus 3 meter cube at a temperature of 30 degrees Celsius. Assume that the gas behaves as an ideal gas. What is the pressure in the vessel? So PV equals to nRT है हमारे पास. We need to find out the pressure. तो nRT upon V हो जाएगा और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन mr से रिलेटेड होता है. तो ये मास अपॉन mr आ गया और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं V से. Now mass of oxygen is given which is 0.960. R की वैल्यू is constant which is 8.31. Temperature is 30 degrees Celsius. उसमें आप 273 ऐड कर दीजिए. Convert into Kelvin. ये हो गया आपका mRT divided by mr of oxygen which is 32. क्योंकि एग्जामिनर गैस की बात कर रहा है. ठीक है, तो हम 32 लेंगे. वॉल्यूम इज गिवन ऑलरेडी इन मीटर क्यूब तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है. 7.00 into 10 to the power minus 3 मीटर क्यूब है हमारे पास. सही. तो ऑब्वियसली हमारे पास प्रेशर कितना आ जाएगा? यहां से हमारे पास प्रेशर आ रहा है 10791 पास्कल. इसको क्लो पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए, और क्लो पास्कल में इसलिए कन्वर्ट करना है क्योंकि आंसर हमें क्लो पास्कल में गिवन है. तो क्लो पास्कल में इसको कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10.791 क्लो पास्कल. सो दैट इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट ऑप्शन. तो 10.79 is basically 10.8 and that C is going to be the right answer. Okay, I hope it makes sense to you. Okay. Which equation represents the standard enthalpy change of formation of water? Guys, सबसे important बात, फॉर्मेशन ऑफ वाटर के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं जिसको आपने फोकस करना है. फर्स्ट वन, कि 1 mole of water needs to be formed. सही है. और दूसरा, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स यूज हो करने हमने अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स in their standard states under standard condition. तो वाटर जो है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन लिक्विड होता है. इसका मतलब ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत. नाउ कंपटीशन एग्जिस्ट बिटवीन बी एंड डी. हम जानते हैं हमें 1 mole of water फॉर्म करना है क्योंकि फॉर्मेशन इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर 1 mole of water, which is why option is D is also incorrect because यहाँ पर 2 moles of water फॉर्म हो रहे हैं. Therefore right answer is going to be B. Question number 9. Hess's law of bond energy data can be used to calculate the enthalpy change of a reaction. Bromoethane can be made by reacting ethene with hydrogen bromide.
व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन? गाइस ये पुराना क्वेश्चन है, राइट? तो जो पुराना क्वेश्चन होता था ना, सी आपको डेटा बुकलेट मिलती थी, उस डेटा बुकलेट के अंदर बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज गिवन होती थी, ऑलराइट? तो इस केस में भी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज डेटा बुकलेट के अंदर गिवन है, जहां से हम उनको यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब अगर इसी पैटर्न का कोई क्वेश्चन आपके पास अब आएगा तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन के साथ बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज का टेबल मिलेगा, ताकि आप इस क्वेश्चन को विदाउट एनी हेजिटेशन सॉल्व कर लें। क्योंकि मुझे कुछ वैल्यूज याद हैं बॉन्ड एनर्जी की, ऑलराइट, तो मैं उनको यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ। कार्बन हाइड्रोजन मेरे पास है 410, एंड ऑब्वियसली कार्बन हाइड्रोजन का दो बॉन्ड यहाँ है, दो बॉन्ड यहाँ है, टोटल 4 बॉन्ड्स हैं, तो मैं इंटू 4 कर लूं। सो 410 इंटू 4, 410 इंटू 4 इज गोइंग टू बी 1640। ये मैं रिएक्टेंट से रिलेटेड वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है? फिर देखें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड एनर्जी आई बिलीव होती है 610। ओके, सिमिलरली ये हो गया इथीन मेरा पूरा। अब आऊंगा मैं HBr, तो HBr की बॉन्ड एनर्जी गाइस आपको मिलेगी 366। नाउ वी नीड टू ऐड ऑल ऑफ देम, इन तीनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 1640 प्लस 610 प्लस 366 इज गोइंग टू बी 2616। ये मेरा रिएक्टेंट हो गया, ठीक है? नाउ वी नीड टू चेक दिस वन। इसमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, एंड ऑब्वियसली कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड की एनर्जी होती है 410। मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा 5 से, y5, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के 5 बॉन्ड्स हैं, 3 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, 5 बॉन्ड्स हैं, तो ये हो जाएगा बेटा मेरे पास 2050। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन भी है आपके पास, यानी इन दोनों कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, ओके? तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड एनर्जी होती है आई बिलीव 350 होती है यार, 350 होती है। फिर कार्बन की ब्रोमीन के साथ भी बॉन्डिंग है, तो कार्बन और ब्रोमीन की बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू बेटा होती है आपके पास 280। सही है, तो मेरे पास कार्बन हाइड्रोजन सॉल्व हो गया, मेरे पास कार्बन ब्रोमीन सॉल्व हो गया, मेरे पास कार्बन कार्बन सॉल्व हो गया। इन तीनों को मैं ऐड करूंगा तो 2050 प्लस 280 प्लस 350 इज गोइंग टू बी 2680, राइट? ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हो गया, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो गया। मुझे एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, तो ऑब्वियसली एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करने के लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, डेल्टा HR इक्वल्स टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की वैल्यू है 2616, प्रोडक्ट की वैल्यू है 2680, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 64। So minus 64 kilojoules per mole is going to be the right answer. The right answer is going to be B. Okay. I hope it makes sense to you. Question number 10. Which reaction is not redox reaction? Not कह रहा है guys, हाँ? Not. अच्छा देखो, मैग्नीशियम यहाँ पर 0 है और मैग्नीशियम यहाँ पर 2+ है, तो मैग्नीशियम हो गया ऑक्सीडाइज। हाइड्रोजन यहाँ पर +1 है और हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया 0, इसका मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब रिडक्शन। तो इस केस में मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है और हाइड्रोजन आयंस जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं, व्हिच इज व्हाई इट इज redox, so it's going to be incorrect. सही है? यहाँ पर नोट करो, नाइट्रोजन आपके पास है +5 और आप नोट करें यहाँ पर नाइट्रोजन आपके पास है +4, तो नाइट्रोजन इज बेसिकली रिड्यूस्ड, वेयरएज ऑक्सीजन आप नोट करें यहाँ पर -2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 0 है, तो इट इज आल्सो रिडॉक्स, बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, नाइट्रोजन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, व्हिच इज व्हाई बी इज आल्सो इनकरेक्ट। आप नोट करें, आपके सामने क्लियर है कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इन SO2 is +4, whereas in SO3 is +6, so sulfur is oxidized during the reaction. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है उसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ओवर हियर इट इज +2, इसका मतलब नाइट्रोजन जो है वो रिड्यूस हो रहा है और सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब ये भी गलत, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी, बिकॉज सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यहाँ पर भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट विल रिमेन सेम।
हाइड्रोजन +1 है यहाँ पर, ऑक्सीजन -2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर +1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर -2 है। इसका मतलब ये ना तो ऑक्सीडेशन हो रही है, ना रिडक्शन हो रही है, और ना ही ये रिडॉक्स है। इट्स बेसिकली एसिडिक ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होकर सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है। नेक्स्ट, द रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज रिवर्सिबल, द डेल्टा H इज नेगेटिव। इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक, फॉरवर्ड रिएक्शन is exothermic. Okay. Which condition of pressure and temperature favors the reverse reaction? Again, reverse reaction किसे कहते हैं? Backward reaction को। Backward reaction को reverse reaction कहते हो आप, या फिर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ फेवर करना। अच्छा, वर्किंग कर लेते हैं। टोटल गैसियस मोल्स हैं रिएक्टेंट साइड पे 3, टोटल गैसियस मोल्स हैं रिएक्टेंट साइड पे 2। मैंने आपको क्लास में कहा है कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाता है जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, यानी फॉरवर्ड चला जाएगा। तो अगर मुझे बैकवर्ड लेके जाना है रिएक्शन को, रिवर्स करना है रिएक्शन को, तो प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा मुझे, राइट। तो प्रेशर डिक्रीज कहाँ लिखा हुआ है? सी में लिखा हुआ है, डी में लिखा हुआ है। इसका मतलब ए और बी दोनों इनकरेक्ट होगी। सिंस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, और किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, देन अकॉर्डिंग टू ली शटर्स प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, यानी रिवर्स रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, बैकवर्ड जाना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर को हाई करना है। तो टेम्परेचर हाई कहाँ लिखा हुआ है? टेम्परेचर हाई यहाँ पर है, टेम्परेचर हाई यहाँ पर है, एंड देयरफॉर सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, next, question number 12. Which statement about the effect of catalyst on a reversible reaction is correct? Okay. Wait. Effect of catalyst पूछ रहे हैं reversible reaction के ऊपर। तो one by one statement read करते हैं। Activation energy for the forward reaction stays the same. Actually, catalyst lowers the activation energy. इसका मतलब this option is going to be incorrect. Okay. Next, the composition of the equilibrium mixture stays the same. That's might be the right answer, because catalyst has nothing to do with the equilibrium yield. Okay, so this is going to be the right one. Let's read C. The rate of backward reaction stays the same. No, forward और backward दोनों होंगे ना, इसलिए ये भी गलत। तो वो कह रहे हैं the value of equilibrium constant changes. Value of equilibrium only changes by changes the temperature. The value of equilibrium constant has nothing to do with the effect of catalyst. ठीक है, इसका मतलब ये भी गलत, and therefore guys we know that B is going to be the right answer. Question 13, which oxide is insoluble in aqueous? Sodium hydroxide. आप जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली है ना, और आप जानते हैं कि ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल। तो दिस ऑप्शन इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट बिकॉज ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट बिकॉज ये भी एक एसिडिक ऑक्साइड है, इसका मतलब दोनों रिएक्शन करेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा। दिस ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट बिकॉज ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इट कैन रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो ये भी रिएक्शन करेगा। ये तो इसका मतलब ये ऑक्साइड्स एल्कली में सॉल्युबल होंगे, वो इनसॉल्युबल क्या है? The right answer is going to be an A, because magnesium oxide is basically basic oxide. ये क्योंकि बेसिक ऑक्साइड है, इसका मतलब ये एल्कली से रिएक्शन नहीं कर सकता, दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, X, Y and Z are 3 elements in period 3. ओके, तो पीरियड 3 के जो एलिमेंट्स हैं वो मैं यहाँ कोड कर देता हूँ। सबसे पहले आपको सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं X reacts with chlorine to give a liquid product। तो जाहिर सी बात है ये गलत, ये गलत और ये भी गलत, क्योंकि ये तीनों सॉलिड्स बनाते हैं। लिक्विड जो है वो सिलिकॉन बनाता है, फास्फोरस बनाता है। ओके, और क्लोराइड कह रहा है तो ये भी गलत। ठीक है, तो
आई होप इट मेक सेंस टू यू। आगे पढ़ते हैं। ओके, वो कह रहे हैं why reacts with chlorine to give a solid product, ठीक है, that dissolves in water to give a solution of pH7। तो obviously solution of pH7 तो सिर्फ सोडियम क्लोराइड से मिलेगा ना, सोडियम क्लोराइड बनेगा, इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो तुम्हें न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलता है pH7 का। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास, दैट्स व्हाट यू हैव रिटन इन योर नोट्स, ऑलराइट। तो इसका मतलब Y जो है वो आपका सोडियम हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। और अच्छा, एक मिनट यार, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लें, वो पूछना क्या चाह रहा है, ये तो हम एनालिसिस कर रहे हैं। Which elements are good conductor of electricity? Oh, oops, 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 good conductor of electricity। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑप्शन है ये तो गलत हो जाएगा हमारा, इसलिए क्योंकि सिलिकॉन फास्फोरस क्लोराइड बनाते हैं जो कि लिक्विड प्रोडक्ट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, बट जाहिर सी बात है सिलिकॉन और फास्फोरस के अंदर फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, व्हिच इज व्हाई दे आर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला स्टेटमेंट तो हो जाएगा गलत। अब दूसरा स्टेटमेंट जो मैंने कहा था कि ये सोडियम है, ये क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करेगा तो pH7 देगा, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एंड ऑब्वियसली सोडियम conducts electricity, sodium is a good electrical conductor because it has C of electron, because it is metal। तो ये बात तो सही है, बिल्कुल सही है, that's right, for sodium it is right। और जो प्रोडक्ट बनेगी वो सोडियम क्लोराइड होगा ऑब्वियसली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। oh my goodness, Z reacts with chlorine to give a solid product, okay, that dissolves in water to give a solution of pH6। oh, that's what we have done in the class, if you remember। अगर आप मैग्नीशियम को क्लोरीन से रिएक्शन करवाओगे तो इट विल टर्न टू मैग्नीशियम क्लोराइड, और मैग्नीशियम क्लोराइड को जब हम वाटर में प्लेस करते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया है कि मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन देता है जिसकी पीएच वैल्यू 6.5 होती है। एंड ऑब्वियसली मैग्नीशियम इज अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो इसका मतलब मैग्नीशियम भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, सोडियम भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, यानी Y और Z इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, X इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, एंड देयरफॉर B इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, इस क्वेश्चन से मुझे ये अंदाजा हुआ कि इंफॉर्मेशन जो हमने आपको प्रोवाइड की है लेक्चर के अंदर वो बहुत ही थोरो कमांड होनी चाहिए उसके ऊपर आपकी, मतलब आप वीक एनालिसिस के साथ या वीक कॉन्सेप्ट्स के साथ पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। You guys need to be prepared each and every single point, और उस पे आपकी ग्रिप हो बहुत अच्छे से, ठीक है। Let's move on to question number 15। A solution contain both magnesium ion and strontium ion at the same concentration। Okay, और याद रखिएगा कि ये भी ग्रुप 2 का एलिमेंट है और ये भी ग्रुप 2 का एलिमेंट है। Next, the solution is divided into 2 equal portions। Okay, aqueous sodium hydroxide is added dropwise to one portion, dilute sulfuric acid is added dropwise to the other portion। Okay, which row is correct? Precipitate seen first when NaOH is added। The problem is कि we have magnesium ions, तो अगर मैं इसको NaOH से रिएक्शन करवाऊंगा तो ऑब्वियसली ये आपको प्रोवाइड करेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और अगर मैं इसको सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करवाऊंगा तो ऑब्वियसली ये कन्वर्ट हो जाएगा MgSO4 में। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज स्ट्रोंशियम आयन। स्ट्रोंशियम को अगर मैं ट्रीट करवाऊंगा तो इट विल टर्न टू स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, और सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करवाएंगे तो इट विल टर्न टू स्ट्रोंशियम सल्फेट। अब प्रॉब्लम ये है कि डाउन द ग्रुप solubility of hydroxides increases over here, solubility decreases। Okay, that's what we have done in the class। तो हाइड्रोक्साइड की सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसके प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे, इसके प्रेसिपिटेट्स नहीं मिलेंगे। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे NaOH ऐड करने पे, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स नहीं मिलेंगे, इसका मतलब C and D is going to be the incorrect option। अब डाउन द ग्रुप solubility of group 2 sulfates decreases, इसका मतलब ये हुआ
कि सबसे पहले प्रेसिपिटेट सोडियम स्ट्रोंशियम सल्फेट के नजर आएंगे, मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्युबल होता है उसके नजर नहीं आएंगे, तो मैग्नीशियम सल्फेट गलत, स्ट्रोंशियम सल्फेट करेक्ट, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। दैट्स एन इजी क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट, the volatility of group 17 element chlorine, bromine and iodine decreases down the group. Volatility यानी ये गैस, ये लिक्विड, ये सॉलिड, एंड सॉलिड कैन नॉट इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर, व्हिच इज व्हाई वोलेटिलिटी डिक्रीजेस। अब प्रॉब्लम ये है कि व्हाट इज द रिस्पांसिबल फॉर दिस। अच्छा, बॉन्ड लेंथ हैज नथिंग टू डू विद द वोलेटिलिटी। बॉन्ड लेंथ इज बेसिकली related to the covalent bond की strength, and that indicates the bond energy value. Same goes for bond strength. Bond strength bond length से connected है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से ऑक्सीडाइजिंग पावर कनेक्टेड होता है, तो ये भी गलत। राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। एंड बाय द वे ये मैंने लिखवाया है आपको पूरा, ये पूरा ट्रेंड लिखवाया है, इसका मैंने ग्राफ भी बनवाया आपको क्लास में, और मैंने कहा है कि एज वी मूव फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, दिस इज increases the strength of van der Waals forces, and therefore boiling point increases, volatility decreases. All right, that's what we have done in the class. In your register check kar sakte ho. So right answer is D. Okay, that's a very straightforward question guys. Bromine is extracted from seawater. In the final stages of the process, two redox reaction takes place. Okay, which row is correct? So we need स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड वी नीड वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड नजर आ रहा है। उसकी वजह ये है कि सल्फर डाइऑक्साइड एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट होता है, टेक्निकली इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। सो अमंग क्लोरीन, ब्रोमीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड इट इज द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप जानते हैं oxidizing power decreases down the group in group 17 elements. इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, आयोडीन जो है वो वीकेस्ट होगा। तो क्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट, आयोडीन वीकेस्ट। तो क्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट यहां पर है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी बी ऑब्वियसली, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सबसे वीकेस्ट होगा। तो क्लोरीन के बाद कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा? ब्रोमीन, और फिर ब्रोमीन के बाद क्या है? आयोडीन। तो आई होप इट मेक्स सेंस टू यू कि किस तरह से ये प्रोसेस जो है वो मूव कर रहा है। ओके, ऑलराइट, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। मतलब मैंने ये पढ़ा भी नहीं है, ब्रोमीन सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके सल्फेट आयन में कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब ब्रोमीन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन सल्फर डाइऑक्साइड। तो ब्रोमीन इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्लियर हो गया। फिर क्लोरीन जो है वो ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज करके ब्रोमीन में कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब क्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर देन ब्रोमाइड, तो क्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर देन ब्रोमीन, व्हिच इज व्हाई बी इज करेक्ट। ओके, आप दोनों तरह से देख सकते हैं इसको। इसमें एक चीज और भी लिख सकते हैं आप ये भी लिख सकते हैं, ओ नहीं इसमें नहीं लिख सकते, ये तो ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं कि वोलेटिलिटी, अभी अभी मेरे ज़हन में मैं शेयर कर लूँ, वोलेटिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं, वोलेटिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, और ये जो फोर्सेस होती हैं ये किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, आई होप मेक सेंस। क्वेश्चन 18, question 18, when burned sulfur forms gaseous product X which can be oxidized to produce a gas Y. Gas Y reacts with water to produce product Z, which row correctly shows the oxidation state of sulfur in X, Y and Z. अच्छा, सबसे पहली बात कि अगर मैं सल्फर को बर्न कर रहा हूं तो ऑब्वियसली इट विल टर्न टू सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड इज अ गैस, तो ये आपका X हो गया। ओके, फिर वो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट X कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस अ गैस Y। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है
वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो ये भी गैस है और ये भी गैस है। ओके, फिर वो आपसे कह रहे हैं गैस Y रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट Z। तो जो गैस Y है आपके पास, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, उसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, एंड दैट सल्फ्यूरिक एसिड इज बेसिकली योर प्रोडक्ट Z। तो ये आपका Z हो गया, ये आपका Y हो गया और ये आपका X हो गया। तो वो पूछ रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन X, Y एंड Z। तो भाई सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 होती है। मतलब गाइस आपको इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमिन करने के लिए कि आप बगैर कुछ लिखे जो है ना उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लें। जैसे मैंने की, मैंने कोई वर्किंग नहीं, मैंने दिमाग में सॉल्व करके +4 लिख दिया। आप चाहें तो वर्किंग कर सकते हैं इसकी, बट मैं ये सब कुछ करवा चुका हूँ आपको क्लास में, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर दिया। हो जाएगा x - 2 × 2 = 0, देन x = +4। सही है। सल्फर डाइऑक्साइड के लिए होगा x - 2 × 3 = 0, देन x = +6। फिर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सल्फर +6 होता है, ये बात मैंने क्लास में पढ़ाई आपको। तो ये सल्फर x हाइड्रोजन +2 हो जाएगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। ऑक्सीजन -2 × 4 since molecule is neutral equals to 0, then x equals to +6। तो +4 +6 +6 +4 +6 +6, ये नहीं हुआ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर इज डी, क्योंकि ये +4 है, फिर +6 है, फिर +6 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। One molecule of ammonia reacts with one molecule of ethyl methanoate to produce one molecule of methanamide and only one other molecule X. Okay. पहले तो इसकी इक्वेशन बनेगी भाई। अमोनिया है हमारे पास और इथाइल मिथानोएट बनाया हुआ है। वो कह रहे हैं जब रिएक्शन करेंगे तो वन मॉलिक्यूल ऑफ मिथेनामाइड बनेगा, HCO2NH2 प्लस। अब देखो ये एज इट इज रहा, यहां से NH2 यहां आ गया, इसका मतलब यहां से C2H5 चला गया। ओके, C2H5 कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्वियसली, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ये तो एज इट इज रहा, यहाँ से NH2 आ गया तो यहाँ एक H रह गया, ये C2H5 और ये H दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, इथेन बनाएंगे। नॉट एट ऑल, एस्टर से तो कभी भी इथेन नहीं बनती। और क्योंकि ये रिएक्शन एक्वस मीडियम में होगा तो इसका मतलब उस मीडियम में वाटर होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि C2H5 वाटर के साथ रिएक्शन करके इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है, दैट इज गोइंग टू बी योर कंपाउंड X, ये आपका X होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन। वन मॉलिक्यूल ऑफ मिथेनामाइड डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग स्ट्रांगली टू प्रोड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया एंड ओनली वन अदर मॉलिक्यूल Y। तो अगर मैं आपके पास HCO2 C2H5 ले रहा हूँ, ओहो, HCO2 NH2 ले रहा हूँ और इसको स्ट्रांगली हीट कर रहा हूँ, तो सिर्फ अमोनिया मॉलिक्यूल बचेगा प्लस एक और मॉलिक्यूल भी होगा, oh my goodness, oh my goodness, oh my goodness, I made a mistake. You guys need to be careful. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Look, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो ये बन रहा है, मैंने HCO2 लिख दिया था, बन ये रहा है, इट इज HCONH2। ओके, मेक सेंस नाउ। आप नोट करें यहां से सारी चीजें एज इट इज रखी हैं, सिर्फ एक ऑक्सीजन रह गई है और यहाँ से NH2 आ गया यहाँ पर। नाउ वन ऑक्सीजन एंड वन हाइड्रोजन लेफ्ट फ्रॉम हियर, ये दोनों C2H5 से रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस इज गोइंग टू बी वेरी एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन कि यहाँ से एक ऑक्सीजन रह गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन रह गया, उन्होंने मिलकर बनाया OH और वो H C2H5 के साथ कंबाइंड होकर कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ही इज सेइंग
कि HCONH2 आपके पास है, ये कन्वर्ट हो गया अमोनिया में। ऑब्वियसली बेटा अमोनिया में इस तरह से कन्वर्ट होगा ना कि ये NH2 और ये H दोनों मिलकर बना लेंगे अमोनिया, तो आपके पास क्या रह जाएगा, CO रह जाएगा। तो CO बनेगा, और ये जो CO है ये आपका क्या हो जाएगा, Y, जबकि C2H5 क्या था आपके पास, X, तो X आपके पास क्या है, इथेनॉल, और Y आपके पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी C। ये एरर मुझसे हुआ क्वेश्चन रीड करते हुए, आप लोगों से भी हो सकता है। ऑब्वियसली बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी से क्वेश्चन रीड करें, ठीक है। एंड सिंस वी मेड अ मिस्टेक ऑन दिस, आई थिंक सो कि हमें इसको हाईलाइट करना चाहिए, हमें इसको ध्यान में रखना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको ध्यान में रखो, ठीक है। क्वेश्चन 20, ओके। Which type of stereoisomerism are shown by 2,4-dimethyl-hex-2-ene? तो सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। hex-2-ene कह रहे हैं, 1 हेक्स कह रहे हैं तो 6 कार्बन एटम होंगे, 1 2 3 4 5 6। 2 इन कह रहे हैं तो इसका मतलब डबल बॉन्ड होगा बिटवीन द कार्बन एटम। फिर 2 4 डाइमिथाइल कह रहे हैं तो ये सेकंड कार्बन पे CH3 आ गया, ये फोर्थ कार्बन पे CH3 आ गया। अब जाहिर सी बात है बाकी सारे हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देते हैं। तो ये आ गया आपके पास, ऑलराइट। अब मसला ये है कि कौन सा ये CH3 हो जाएगा, ओके। तो देखो पहली तो चीज ये कि ये कायरल कार्बन आ गया मेरे पास, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ग्रुप है, ये मेरा सेकंड ग्रुप है, ये हमारा थर्ड ग्रुप है, एंड दिस एंटायर थिंग इज फोर्थ ग्रुप, ओके। सो मेरे पास एक आ गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑब्वियसली ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दे सकेगा क्योंकि दो सिमिलर मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ठीक है ना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल होता है, ज्योमेट्रिकल आ नहीं रहा बिकॉज ऑफ सिमिलर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जो ग्रुप्स अटैच हुए हैं, और ये ऑप्टिकल कार्बन। तो आई थिंक डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, an organic ion containing a carbon atom with a negative charge is called carbanion. I did that in a class कि negatively charged अगर कार्बन है तो वो कार्बेनाइन होगा, और अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन है तो वो कार्बोकैटायन होगा, which is also called carbonium ion. The reaction between aqueous sodium hydroxide and 1-bromobutane proceed by SN2 mechanism. What is the first step in the mechanism? अब इसके लिए आपको मैकेनिज्म बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, जो कि हमने क्लास में करवाया था। आपको याद है कि SN2 मैकेनिज्म अगर आपको याद हो, SN2 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल always react from the opposite side of the partial positive carbon atom, right? यानी मैं 1-bromobutane को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, और ये हो जाएगा CH2 एंड देन CH3, ये 1-bromobutane हो गया। तो आप नोट करें मैं इसको C3H7 लिख सकता हूँ, हम जल्दी से इसको C3H7 लिख सकते हैं, ठीक है। रिएक्शन किससे करवा रहे हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो हाइड्रोक्साइड आयन इज गोइंग टू बी द न्यूक्लियोफाइल, दैट इज OH नेगेटिव आयन, ये लोन पेयर है। आप जानते हैं ये स्लाइड पॉजिटिव, ये स्लाइड नेगेटिव, ये इससे रिएक्शन करेगा, एट द सेम टाइम ये यहाँ से निकल जाएगा। वन स्टेप रिएक्शन होता है वाया पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसमें पार्शियल बॉन्ड ब्रेकिंग, पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, फिर प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ से ब्रोमाइड आयंस चले जाएंगे। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास, ठीक है। सो मैंने कुछ शॉर्ट करके रिपीट करने की कोशिश की है। अटैक बाय अ न्यूक्लियोफाइल ऑन अ कार्बन एटम विद अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यस, यही हो रहा है कि पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। So this might be the correct answer, but let's read some other options as well. Heterolytic bond fusion followed by attack of an electrophile. Alkyl halide always undergoes nucleophilic substitution reaction, never undergo electrophilic reaction, which means B is incorrect. Next, heterolytic bond fusion followed by an attack of a nucleophile on a carbocation. कार्बोकैटायन SN1 मैकेनिज्म में बनता है, SN2 में नहीं बनता,
because SN2 जो होता है वो single step reaction होता है, attacking of nucleophile and ejection of halide ions takes place simultaneously. Next, homolytic bond fission takes place in the presence of sunlight. There is no sunlight here. इसका मतलब ये भी गलत. तो right answer is going to be an A. Okay. Question आपके पास है 22. Okay. Compound X can be converted into compound Y in a single reaction. What could be the identity of X? अगर एक एल्कीन से आपको ये प्रोडक्ट मिल रही है और इस प्रोडक्ट के अंदर आपके पास कीटोन भी है और इस प्रोडक्ट के अंदर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो X है ये आपके पास एल्कीन हो गया. जब आपको कार्बोनाइल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिले तो इसका मतलब X एल्कीन है. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप इसको रिएक्शन करवा रहे हैं हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 से. उसने मुझे कुछ दिया नहीं है, लेकिन मैंने ऑप्शन से जज कर लिया कि इफ वी हैव एल्कीन एंड वी आर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन, इसका मतलब दैट शुड बी एन एल्कीन एंड इट शुड रिएक्ट विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 इन ऑर्डर टू गेट दीज फंक्शंस. तो मुझे ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन मुझे एक कीटोन और एक कार्बोक्सिलिक एसिड देगा. अगर आपको याद हो, मैंने क्लास में ये कहा था कि C डबल बॉन्डेड CH अगर है, डबल बॉन्डेड CH, तो ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा. और अगर आपके पास डबल बॉन्डेड C है तो इट गिव्स कीटोन. सही है. सो मुझे और आपको मिलकर अब डिसाइड करना है कि क्या होगा. Okay guys, we need to work on it. Literally we need to work on it. Carbon to carbon, hydrogen to hydrogen. Okay, so I'll try to start. Okay, this is CH3, this is CH3, this is double bonded C, it will turn to ketone. Okay, this is CH2, this is CH2, this is CH2, this is CH2, this is CH, this is CH, this is CH3, that is CH3, this is double bonded CH, it will turn to carboxylic acid. So A is going to be the right answer. Okay, I hope it makes sense to you. ये आपका CH है. ओके, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा गाइस COH में, और बचा पार्टी ये आपका होगा डबल बॉन्डेड C, तो इट विल टर्न टू कीटोन. ओके, तो ये ऑप्शन ए हो गया. हमें आगे जाने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है, मैं दोबारा से एक मरतबा रीड कर देता हूँ. ये CH3 है, ये भी CH3 है, ये डबल बॉन्डेड C है, इसका मतलब इट विल टर्न टू कीटोन. ये CH2 है, ये रहा CH2, ये भी CH2 है, ये रहा CH2, ये CH है, ये रही CH, ये CH3 अटैच हुआ हुआ, ये रहा CH3, ये डबल बॉन्डेड CH है, इट विल टर्न टू COH, ये आ गया COH. आई होप यू गेट द पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन 23 के लिए क्या करना है? क्वेश्चन 23 के लिए तो बहुत मामला सिंपल से हैं. Which compound reacts with 2,4-DNPH reagent but does not react with tolerance reagent? बेटा एक बात तो तय हो गई कि ये रिएक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब ये कीटोन होगा. सही. और टॉलरेंस से रिएक्शन नहीं कर रहा, इसका मतलब नॉट एन एल्डिहाइड. ओके, तो ये तो गलत क्योंकि ये अल्कोहल है. ये भी गलत क्योंकि इसमें एल्डिहाइड है. ये भी गलत क्योंकि इसमें एल्डिहाइड है. तो राइट आंसर इज ए, क्योंकि इसमें कीटोन है. तो कीटोन से 2,4-DNPH का टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा. ओके, ऑलराइट. ओके, 24. Oh my goodness. Question 24. Is structural isomerism and stereoisomerism considered when answering this question? The molecular formula of compound X is this. Compound X reacts with alkaline aquaciodine. इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास या तो CH3CO ग्रुप अवेलेबल हो या फिर CH3CHOH अवेलेबल हो. Next, can be dehydrated to form 2 alkenes only.
टू एल्कीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन डिहाइड्रेशन। सो ये अल्कोहल्स हैं, इनकी डिहाइड्रेशन होगी तो आपको दो एल्कीन्स मिलनी चाहिए, लेकिन उससे पहले ये भी पता होना चाहिए कि आइडोफॉर्म का टेस्ट कौन सा देगा। तो हमें तो ये चाहिए इसका मतलब, सही है। और ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन ए में है CH3, CH2, CH, CH3, CH2OH। तो ऑब्वियसली इस कंपाउंड में, इस ऑप्शन के अंदर ये ग्रुप तो अवेलेबल ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन होगी गलत, सही है। ऑप्शन बी को देखो, ये ए हो गया, बी को भी देखो, ओपन करो स्ट्रक्चर को, CH3, CH2, CHOH and then CH2 and then CH3। तो अगेन इस स्ट्रक्चर में भी ये CH3 CHOH एक साथ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसमें भी हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, इसका मतलब ए रॉन्ग, बी रॉन्ग। नाउ कम टू C and D, ओके। सी लिखते हैं, CH3, CH, CH3, CH, OH, CH3। तो गाइस ये नोट करो, ये CH3OH ये अवेलेबल है ऑप्शन सी में, इसका मतलब इसकी डी इसका इसमें हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अब जब मैं इसकी डिहाइड्रेशन करूंगा तो मुझे एक्चुअली दो डिफरेंट एल्कीन्स मिलनी चाहिए, सिर्फ ओनली कह रहा है, दो से ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए। तो ये हो जाएगा CH, CH3। मैंने क्लास में समझाया था कि OH हटाओ, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगाओ, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। तो यहां से भी शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, यहां से भी होगा, तो प्रोडक्ट ये बनेगी CH3, CH, होल्ड CH नहीं, हाइड्रोजन चला गया तो डबल बॉन्ड आएगा बिटवीन द कार्बन एटम, ये CH और ये CH3, ठीक है। ये हमने इससे कर लिया, अब हम इस वाली कार्बन से करेंगे तो हमारे पास एल्कीन बनेगी CH3, CH, CH3, CH, डबल बॉन्ड CH2। तो अब नोट करो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है तो इसके साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, और इसका कोई कार्य नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं होगा। तो इसका मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर में स्टेरियो आइसोमेरिज्म नहीं है। सिमिलरली इस पूरे स्ट्रक्चर में भी स्टेरियो आइसोमेरिज्म नहीं है, क्योंकि ना ज्योमेट्रिकल होगा ना ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल इसलिए नहीं होगा क्योंकि दो सिमिलर हाइड्रोजन अटैच है इस डबल बॉन्डेड कार्बन से, और ऑप्टिकल इसलिए नहीं होगा क्योंकि दो सिमिलर मिथाइल अटैच है इस कार्बन से, राइट। तो इसका मतलब टू एल्कीन्स मिल रही है यहाँ से, कोई आइसोमर भी नहीं है, टू एल्कीन्स ओनली। सो ये ग्रुप भी अवेलेबल है हमारे पास, हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, और ये दो एल्कीन्स भी अवेलेबल है हमारे पास। सो आई थिंक सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ओके। चले ऑप्शन डी को भी डील कर लेते हैं, बट ऑप्शन डी के लिए वर्किंग करनी पड़ेगी काफी ज्यादा, तो लेट मी ट्राई। ये है आपके पास CH3, देन CH2, देन CH2, देन CH, OH एंड देन CH3, सही है। तो नोट करो, इसमें हाइड्रोफॉर्म का पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है क्योंकि CH3 CH OH ग्रुप मौजूद है। अब जाहिर सी बात है, तुम OH हटाओगे, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लाओगे, और जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। तो शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जब होगा तो यू विल गेट टू डिफरेंट एल्कीन्स। नोट करना, तुम्हें शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। तो जब पहली वाली हाइड्रोजन से करेंगे, पहले वाले कार्बन से करेंगे, तो ये हो जाएगा CH3, CH2, डब CH,
डबल बॉन्ड CH एंड देन CH3, राइट। और जो दूसरी आखिरी वाली कार्बन से करेंगे तो ये होगा CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब तुम नोट करो, इसमें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो सिमिलर हाइड्रोजन लगा दिए हमने, लेकिन यहाँ पर ये तुम्हें सिस भी देगा, ये तुम्हें ट्रांस भी देगा, तो ये तुम्हें सिस भी देगा, ये तुम्हें ट्रांस भी देगा। तो इसका मतलब यहाँ पर तुम्हें सिस, ट्रांस और एक ये तीन एल्कीन्स मिलेंगी, जबकि उसने कहा था सिर्फ दो एल्कीन्स चाहिए। तो इसका मतलब दिस ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। ओके, क्वेश्चन 25, which volume of hydrogen measured under room condition is produced when 0.16 gram of methanol reacts with an excess of sodium? Okay, methanol is an alcohol, guys. So मैं सबसे पहले इक्वेशन लिखता हूं, ये हो जाएगा मिथेनॉल सोडियम मेटल से रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम मिथॉक्साइड में। ओके, एंड ऑब्वियसली H2 बनाने के लिए आई नीड 2 हाइड्रोजन एटम्स, फॉर दैट आई नीड टू बैलेंस 2 here, 2 here and 2 here. Okay, that's my balanced chemical equation. Now we have mass of methanol, which means I can find the moles of methanol from this, but जगह नहीं है बिल्कुल भी यार, क्या मसला है। तो moles of methanol देख लेते हैं, 0.160 डिवाइडेड बाय मिथेनॉल। मिथेनॉल का MR होता है बेटा हमारे पास आई थिंक 32, या सही है। तो 0.160 डिवाइडेड बाय 32, 5 into 10 to the power -3 moles. नेक्स्ट मुझे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, तो जो मोल्स मैंने निकाले हैं मिथेनॉल के, उनको मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो मुझे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मिल जाएंगे। 2 से इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों के दरमियान 2:1 का रेशियो है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.5 into 10 to the power -3 मोल्स। मुझसे मालूम क्या करवाना चाहते हैं वो, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मालूम करवाने के लिए मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 24,000 cm³ से, क्योंकि एट RTP यही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है सारी गैसेस, into 24,000 cm³, so into 24,000 cm³ कर देते हैं, तो आंसर इज गोइंग टू बी 60 cm³। so 60 cm³ is going to be the right answer। तो 60 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में लिखा है, which means A is going to be the right answer। okay, I hope it makes sense to you कि हमने किस तरह से इसको डिटरमाइन किया है। क्वेश्चन नंबर 26, compound X produces carboxylic acid। okay, when heated under reflux with acidified potassium magnate 6, compound X does not react with sodium metal। अगर कंपाउंड X सोडियम मेटल से रिएक्शन नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि अल्कोहल कैन आल्सो रिएक्ट विद सोडियम मेटल, तो जब वो कह रहा है कि कंपाउंड X डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम मेटल, तो क्या हम ये नहीं कहेंगे कि नो अल्कोहल? हम ये नहीं कहेंगे। उसकी वजह ये है कि वो ऑक्सीडाइज तो हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो अल्कोहल्स डू ऑक्सीडाइज, राइट? सो वी कैन नॉट से कि इट इज नॉट एन अल्कोहल, इट मस्ट बी एन अल्कोहल बिकॉज वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। ओह, ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन देखने के बाद पता चल रहा है कि हम ये भी कह सकते हैं कि नो अल्कोहल्स कहना पड़ेगा, ऑप्शंस इस तरह से हैं, ठीक है।
तो नो कार्बोक्सिलिक एसिड, नो अल्कोहल्स, तो इसका मतलब ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी गया। और कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है तो इसका मतलब प्रोपेनॉन तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोपेनॉन कैन नॉट ऑक्सीडाइज। सो एल्डिहाइड इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, बिकॉज प्रोपेनॉल जो है ऑक्सीडाइज होकर प्रोपेनिक एसिड बनाएगा, एंड प्रोपेनॉल जो है वो सोडियम मेटल से रिएक्शन भी नहीं करता। दैट्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बट मैनेजेबल है। 27. A reaction occurs when a sample of 1 chloropropane is heated under reflux with sodium hydroxide dissolved in ethanol. Which row is correct? So this is your alkyl halide. And this reagent shows that elimination takes place. So किसी भी alkyl halide की जब elimination होती है तो alkenes form होती है। तो alkyl halide gives alkene, okay? तो elimination A और B में है, C और D गलत। अब जाहिर सी बात है, दिस इज 1 क्लोरोप्रोपेन, तो मैं इस 1 क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। वैसे तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए, बिकॉज वी हैव डन दिस एग्जांपल इन क्लास। तो अगर मैं 1 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपीन बनाऊंगा तो इट मस्ट बी 3 कार्बन एटम की प्रोपीन, विच इज 3 कार्बन एटम की एल्कीन, विच इज प्रोपीन, ओके। सो 3 कार्बन एटम का एल्डिहाइड, सॉरी 3 कार्बन एटम का alkyl halide gives 3 carbon atom alkene, that is propene. The propene is here, and therefore B is going to be the right answer. Okay. Okay, next question number 28. Ethane dioic acid has a formula. What is the formula of aluminum ethane diode? बेटा जब ethane diode को ionize करते हो तो it will turn to C2O4 negative plus 2 hydrogen ions, क्योंकि ये डाइबेसिक एसिड है, और एल्यूमिनियम हैज 3 प्लस चार्ज। सो तुम जानते हो कि अगर एल्यूमिनियम तुम्हारे पास 3 प्लस है और इथेन डायोएट आयंस तुम्हारे पास 2 माइनस है, तो अगर तुम चार्जेस को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट Al2C2O4 taken 3. So right answer is going to be D. Okay. Question 29. Alcohols, aldehyde and nitriles can each be converted into carboxylic acid. बिल्कुल सही बात है। प्राइमरी अल्कोहल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, नाइट्राइल CN जो है उनकी एसिड हाइड्रोलिसिस होती है तो भी कन्वर्ट होगा। तो हम देख लेते हैं। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे, सही। एल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे, और जो नाइट्राइल्स हैं दैट इज CN, ये एसिड हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे। ये कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाया है। तो सबसे पहला अल्कोहल, अल्कोहल में ऑक्सीडेशन होगी, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसका मतलब A और B दोनों गलत हो गए। एल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज होंगे, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस होती है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो इसका मतलब राइट आंसर इज गोइंग टू बी C. ओके, नेक्स्ट। God, this is crazy. How many structural isomers with molecular formula C4H10O give infrared absorptions, both at approximately 1200 centimeter cube and approximately 3400 centimeter cube? Okay. अच्छा, दो ऑब्जर्वेशंस मेरे पास। पहली तो उन्होंने ये कहा है कि 1200 सेंटीमीटर इनवर्स है, राइट। सो हम डेटा बुकलेट में जाएंगे और डेटा बुकलेट में देखेंगे कि 1200 सेंटीमीटर की रेंज
डेटा बुकलेट में किस तरह से लिखी हुई है। तो डेटा बुकलेट में बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि 1040 से लेकर 1300 की अगर रेंज है सेंटीमीटर इनवर्स की, तो जाहिर सी बात है आपके पास ये सी सिंगल बॉन्ड ओ है, दैट मीन्स ये अल्कोहल को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ये ईथर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, और ये एस्टर के अंदर भी बॉन्ड हो सकता है। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास। सिमिलरली आपके पास 3400 सेंटीमीटर इनवर्स है, तो अगर 34 सेंटीमीटर 100 इनवर्स पे जाते हैं डेटा बुकलेट में, तो वहां पर बहुत ही क्लियर कट एग्जामिनर ने कहा हुआ है कि 3200 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर 3600 सेंटीमीटर इनवर्स में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डेड अल्कोहल्स होते हैं। एक बात तो तय हो गई कि जनाब दिस मस्ट बी एन अल्कोहल, ना ये ईथर है ना ये एस्टर है, सही है। अब 4 कार्बन एटम के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, यानी अल्कोहल है तो अल्कोहल के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, C4H10। तो भाई एक तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब हम इससे चेन बना लेते हैं, ये हो जाएगा CH3 CH CH3 CH2OH। हम एक और चेन बनाने की कोशिश करते हैं, ये हो जाएगा CH3 CH3, ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा OH। अब ये हमने कैसे बनाई, वैसे तो क्लास में सिखाया है, लेकिन हमने कहा CH2 और H दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, CH3, और ये OH इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, सही है। फोर्थ कौन सा है, अब हम देखेंगे पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशन के लिए हम ये ले लेते हैं CH3 CHOH CH2 CH3, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पोजीशन, और ये एक दूसरे के क्या हो गए, चेन। फंक्शनल नहीं ले सकता, इसलिए कि फंक्शनल ग्रुप लूंगा तो जाहिर सी बात है अल्कोहल से ईथर बन जाएगा, तो ये वाली जो पीक होगी ये डिसअपियर हो जाएगी, एंड आई डोंट वांट दैट, ओके। सो मुझे अल्कोहल ही रखना है, तो ये 4 आइसोमर्स बनेंगे, 4 से ज्यादा नहीं बनेंगे। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी, आई बिलीव। कंपाउंड Q कंटेन 40% कार्बन बाय मास, व्हाट कुड Q बी। तो मुझे ये देखना है कि 40% बाय मास इसमें से किस ऑप्शन के अंदर मिलता है, फिर वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल let's find out the MR of glucose which is 180, या periodic table यूज करके खुद से डिटरमिन करेंगे, एग्जामिनर ने नहीं दिया। The MR of starch is going to be obviously 162. The MR of sucrose is going to be 342. Okay. Now हम सबसे पहले जो है वो ग्लूकोज में परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन डिटरमिन करते हैं, परसेंटेज by mass of carbon. We have 6 carbon atom here, तो 12 into 6 करेंगे, divided by MR which is 180 into 100, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 40%। तो 40% इसमें आ गया, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। सेकंड के लिए देख लेते हैं, परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मास होता है 12, सुक्रोज के अंदर 6 कार्बन एटम है, तो इंटू 6 करेंगे, डिवाइडेड बाय 162 इंटू 100, सो ये मेरे पास बेटा आ जाएगा 44.4%, ओके। अगर सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाए तो राइट आंसर इज डी, ये मैंने आपको शॉर्टकट दिया हुआ था, एलिमिनेशन नहीं है इसमें, राइट। सो आप चाहें तो थर्ड भी कर सकते इसी तरह आपकी तसल्ली के लिए, वैसे तो जरूरत नहीं है बट कर देते हैं। परसेंटेज इंटू 12 करेंगे, डिवाइड बाय एमआर इज 342 into 100, so it's going to be how much, 42.10,
परसेंट। ओके, इसका मतलब ये भी गलत है। A container is partially filled with hot water, seat left to cool. Okay, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि भाई partially left to cool। तो आप नोट करो यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है क्योंकि हॉट वाटर है, सही है। और जाहिर सी बात है लेफ्ट टू कूल किया आपने तो यहाँ टेम्परेचर कम हो गया, होगी तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। आप इसको इस तरह से भी सोच सकते हो कि जब टेम्परेचर हाई होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और जाहिर सी बात है जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी इनटू द एटमॉस्फेयर बिकॉज़ रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। नेक्स्ट देखो, as the temperature decreases more water molecules move from vapor to liquid। बिल्कुल सही बात है, जब टेम्परेचर तुम कम करोगे तो जाहिर सी बात है ये वेपर फॉर्म में होगा, ये स्टीम फॉर्म में होगा, राइट, ये स्टीम फॉर्म में होगा। तो जब कूल करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। ओके, थर्ड, as the temperature decreases the vapor pressure of the water decreases। बिल्कुल सही बात है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो कोलिजन विद द वॉल ऑफ द कंटेनर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करते हैं। जब तुमने टेम्परेचर कम कर दिया तो जाहिर सी बात है जो वेपर प्रेशर होगा वाटर का वो भी कम हो जाएगा। तो थर्ड भी सही है, तो राइट आंसर इज ए। Question 33, ammonia and chlorine. Ammonia and chlorine react together in a gas phase. Which statement are correct? चलो देखते हैं क्या कहते हैं। यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -3, जबकि यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। इसका मतलब नाइट्रोजन -3 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन अकर। ठीक है, सिमिलरली ये क्लोरीन है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, और यहां पर क्लोरीन जो है वो -1 है, इसका मतलब ये हुआ रिडक्शन हो रही है। ओके, तो कहने का मतलब ये हो कि अमोनिया बिहेव्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, दैट्स राइट, क्योंकि वो दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो देखो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड, अमोनिया बिहेव्स एज अ बेस, बिल्कुल सही बात है, ये भी ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पर बना है हमारे पास अमोनिया माइंस। तो व्हेनेवर अमोनिया माइंस आर फॉर्म, नाइट्रोजन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर यूज किया है, और लोन पेयर डोनर्स आर बेसिस, लोएस्ट बेसिस। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट, तो अब यहाँ लिख सकते हैं कि अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्टर है, 3 हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन हो गए अमोनिया माइंस में, ये भी कह सकते हो, सही है। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेंजेस। नो, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर +1 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन +1 ही है, तो हाइड्रोजन विल रिमेन सेम, व्हिच मींस बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 34, in which reaction does ammonia behaves as a Bronsted-Lowry acid? Bronsted-Lowry acid किसे कहते हैं? प्रोटॉन डोनर्स को कहते हैं। सही है, अमोनिया कन्वर्ट हो गया अमोनिया माइंस में, इसका मतलब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो प्रोटॉन डोनेट तो नहीं कर रहा, सही है। अब जब प्रोटॉन डोनेट नहीं कर रहा तो जाहिर सी बात है क्योंकि प्रोटॉन डोनर होना चाहिए, तो इसने प्रोटॉन डोनेट किया है, ये NH2 नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब ये ठीक है। और ये गलत होगा इसलिए क्योंकि अमोनिया ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया जब तो वो अमोनिया माइंस में कन्वर्ट हुआ है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर इज डी ऑब्वियसली। इसमें थर्ड क्यों नहीं हो सकता? आप जानते हैं कि अमोनिया के पास लोन पेयर होता है,
ये अमोनिया सिल्वर आयन को लोन पे डोनेट करके डेटिव बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो बेसिकली अमोनिया विल रिमेन अमोनिया इन द एंटायर रिएक्शन। इसका मतलब ना ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है ना ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पर एज अ लाइगेंड बिहेव कर रहा है। और मैंने लाइगेंड बताया था लोन पे डोनर को कहते हैं, जिसको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफाइल कहते हो, उसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? लाइगेंड। ठीक है, आप पढ़ेंगे A2 के अंदर। क्वेश्चन 35 से रिलेटेड बात करते हैं। क्लोरीन रिएक्ट्स विद हॉट एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो व्हेन वी टॉक अबाउट हॉट एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑब्वियसली NaOH अंडर हॉट एक्वस क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम क्लोराइड में, सोडियम क्लोरेट 5 में और वाटर में। सही, that is the reaction which we have done in the class. Now examiner is saying oxidation state of chlorine shows in the product of this reaction. So this is the product of the reaction. और तुम जानते हो कि इसमें क्लोरीन जो है वो -1 है बिकॉज सोडियम इज +1। इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास। मैंने कहा था ये कॉमन है और यही पूछे जाते हैं, उस पर आपको कमांड होनी चाहिए। आप चाहें तो इसको हम कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। 36 in which different forms does nitrogen exist in compounds? जब नाइट्रोजन बॉन्डेड बाय ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, तो जाहिर सी बात है ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसलिए क्योंकि आपको हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि HCN होता है, इसमें देखें ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ, तो ये बात तो सही है बिल्कुल। फिर वो नेक्स्ट कह रहे हैं एज पार्ट ऑफ कैटाइन, ये भी आपने पढ़ा है, ये भी ठीक है। एज पार्ट ऑफ कैटाइन क्या होगा? अमोनिया माइंस। सही है। फिर वो कह रहे हैं आपसे इन एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5, तो बिल्कुल सही बात है भाई, नाइट्रिक एसिड के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको लिखवाई है +5। आप चाहें तो कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। नाइट्रोजन को X लो, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन -2 टाइम्स 3 करो क्योंकि 3 ऑक्सीजन एटम है, मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल इक्वल्स टू 0, देन X इज इक्वल्स टू +5। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, व्हिच इज व्हाई A इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, question number 37. Polyethylene and PVC are examples of addition polymer. Which statement are correct? On combustion, PVC can produce carbon monoxide. गलत, it produces carbon dioxide. Okay, and HCl. तो ये statement तो सही है आपका, सही है। नहीं, अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रही तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो जाएगा। सो उसने कंबशन का है तो इट माइट बी कंप्लीट, इट माइट बी इनकम्प्लीट। अगर कंप्लीट कंबशन है तो ये दोनों होंगे, और अगर इनकम्प्लीट कंबशन है तो ये भी होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। ओके, पॉसिबिलिटी सबकी है। नेक्स्ट, व्हेन पॉलीथीन इज बuried in a landfill site, it will not significantly biodegradable. Sahir's बात, it is non biodegradable, so that's also correct. Next, the empirical formula of an addition polymer is the same as that of the monomer. ये बात बिल्कुल ठीक है। ये बात कैसे ठीक है, इसको देखते हैं। मिसाल के तौर पे एक हम पॉलीमर ले लेते हैं, एडिशन पॉलीमर ले लेते हैं। ये है CH2, ये है CH2, देन CH2, सही है, और ये है CH2, सही है। ये आपका पॉलीमर हो गया। अब इसमें टोटल कार्बन एटम कितने हैं भाई? 4। टोटल हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 8। इस पॉलीमर का स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, इसको मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की फॉर्म में लिखा। अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो इसका एम्पेरिकल क्या बनेगा? CH2। अब एक काम करते हैं, इसका मोनोमर ले लेते हैं। इसका जो मोनोमर है वो आपके पास है इथीन, क्योंकि पॉलीथीन बनता ही इथीन से। इस इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4। अगर मैं इस C2H4 को हाफ कर दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2। तो अब आप नोट करो, जो पॉलीमर का इंपेरिकल फॉर्मूला है वही मोनोमर का भी इंपेरिकल फॉर्मूला है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी Na। ओके, क्वेश्चन नंबर 38।
organic compound X gives a precipitate when warm with aqueous silver nitrate. Okay. This precipitates dissolve when concentrated aqueous ammonia is added. That's a very powerful statement because जब precipitates dissolve होता है aqueous ammonia में तो उससे related मेरे पास दो possibilities बनती हैं. पहली chloride ion present because chloride ion के जो chloride silver chloride होता है वो soluble होता है in both concentrated and dilute aqueous ammonia, whereas जो bromide ions होते हैं वो concentrated aqueous ammonia के अंदर soluble होते हैं जबकि dilute aqueous ammonia के अंदर partially soluble होते हैं. तो bromide ions present. ओके तो bromide ions present ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. Chloride ion is present ये भी स्टेटमेंट सही है लेकिन आयोडीन जो है वो गलत because iodine remains insoluble in even concentrated aqueous ammonia. So right answer is going to be B. Okay. Now the next question is question number 39. Propanol is basically an aldehyde. और इस प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर होगा CH3 CH2 CHO reacts with hydrogen cyanide to form 2-hydroxybutane nitrile. तुम जानते हो कि ये तुम्हारा साइनोहाइड्रन है. सही है. A suitable catalyst for this reaction is sodium cyanide. That is the equation for the reaction. Which statement about the reaction of propanol with hydrogen cyanide is correct? HCN is a weaker nucleophile. It is a weaker acid, obviously. सही है. Then the nucleophile provided by NaCN, that's true because ये strong electrolyte होता है, fully ionized होता है, ionic compound होता है. Right? That's what we have done in the class. जबकि आपको पता है HCN जो है वो weak acid होता है, partly ionized होता है in aqueous medium, covalent molecule है. तो first statement is right. The reaction mechanism involves two steps. That's also correct. अगर आपको याद हो स्टेप 1 के अंदर एनाइन बनता है फिर स्टेप 2 के अंदर साइनोहाइड्रिन बनता है. ठीक है. तो इस स्टेटमेंट के लिए जरूरी है कि आपको मैकेनिज्म बहुत अच्छे से याद हो. ओके. नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन हैज अ कायरल कार्बन एटम. ये बात बिल्कुल ठीक है. कैसे पता चल रही है मुझे ये बात? देखो मैं आपको समझा देता हूँ. दिस इज योर कायरल कार्बन क्योंकि ये प्रोडक्ट है. क्यों? इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, हाइड्रोजन इज द सेकंड ग्रुप, OH is the third group, and cyanide is the fourth group. So this is also correct, and therefore A is going to be the right answer. Okay. और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आप नोट्स में चेक कीजिएगा, आपको 2 स्टेप रिएक्शन मिलेगा. मैंने कहा फर्स्ट स्टेप में ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके एनाइन बनाएंगे जिसमें ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होगा. फिर सेकंड स्टेप के अंदर हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बनेगी जिसको हम साइनोहाइड्रिन भी कहते हैं. तो 2 स्टेप रिएक्शन होता है. ओके. मैंने काफी डिटेल से करवाई हुई है चीजें. होप यू गेट द नॉलेज और यू गेट द इंफॉर्मेशन. द स्ट्रक्चर ऑफ द लैक्टिक एसिड इज शोन. Which esters might form when lactic acid is heated? That's what we have done in the class. When lactic acid is heated, cyclic diester is formed. Okay, चलें one by one solve करते हैं इसको. तो काफी टेक्निकल सा फील हो रहा है मुझे. CH3 CH OH और ये हो गया CWH. ये तुम्हारा लैक्टिक एसिड का एक मॉलिक्यूल हो गया. और दूसरा जो मॉलिक्यूल है ना वो इस तरह से अटैच होगा. CH CH3 CWH. अगर तुमने प्रोडक्ट बनानी है तो ऑब्वियसली यहाँ से OH यहाँ से H दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर. और तुम्हारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी. प्रोडक्ट में हम सबसे पहले किसका पार्ट लिखेंगे? एसिड का, which is CH OH and then C डबल बॉन्ड O. उसके बाद क्या होगा? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ क्या है? CH. CH के साथ क्या है? CH3. और आपके पास क्या होगा? CWH. ऑलराइट. सो लेट्स सी कि ये हमारे पास है ऑप्शन में या नहीं. तो देखो सबसे पहले CH3, ये रहा CH3, फिर CH, ये रहा CH. इस CH के साथ ये ब्रैकेट में हमने OH लगा दिया क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, ये आ गया. देन हमारे पास है CO2, ये आ गया CO2. फिर हमारे पास CH है, ये आया CH. इस CH के साथ ये सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये CWH, ये आ गया CWH.
तो इसका मतलब जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है वो इस फर्स्ट वाली ऑप्शन से टैली हो गया, इसका मतलब ये करेक्ट हो गया। ओके अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी जो मैंने क्लास में भी करवाई है आपको, CH3। ये तो रजिस्टर में भी हमने काम किया है, ये कॉन्सेप्ट मैंने शेयर किया था आपके पास। अगर लैक्टिक एसिड आपस में रिएक्शन कर लें तो फिर क्या होगा, फिर साइक्लिक डायस्टर बनेगा, और मैंने उसको लिखने का तरीका सिखाया था, अगर आपको याद हो। ये OH, ये CH, ये CH3, ये C, ये O, ये OH प्लस। सो यहां से क्या होगा OH, यहां से क्या होगा H, यहां से OH, यहां से H। ओके, तो वाटर बन जाएगा, लेकिन हमने मॉलिक्यूल को कंबाइन करना है, जगह नहीं है मेरे पास, सो मैं मॉलिक्यूल को यहाँ कंबाइन करने की कोशिश करता हूँ। दिस इज CH3, CH, CO, CO के बाद है आपके पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद है CH, CH के बाद है CH3, देन CO। इस CO के बाद क्या है, ऑक्सीजन, और ये आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये है, देखो ये CH3 ये रहा, ये CH ये है, ये CO ये रहा, ये ऑक्सीजन ये रहा, उसके बाद CH ये आ गया, उसके बाद CH3 ये रहा, उसके बाद CO ये है, उसके बाद ये ऑक्सीजन एटम ये है। तो इसका मतलब बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है, ये भी साइक्लिक डायस्टर है। ओके, थर्ड, थर्ड वाला इनकरेक्ट है, थर्ड वाला मुझे लगता है इनकरेक्ट है, इसलिए क्योंकि जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया है जरा देखिएगा, ये CH3 एज इट इज, ये CH एज इट इज, ये सब्स्टिट्यूट तो ब्रैकेट में चला गया, ये CO2 है ये एज इट इज, ये CH है एज इट इज। अब इस CH के साथ एक CH3 है और एक CWH है, तो बेटा CH3 इज देयर, लेकिन CWH की जगह OH लगा दिया एग्जाम ने, विच इज रॉन्ग। ओके, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत, एंड देयरफॉर आंसर इज गोइंग टू बी B। ऑलराइट, I hope it makes sense to you. Thank you very much, guys.